Hello and welcome to Military Mantra. In this interview, we have today Piyush Sharma, who's the elder brother of late Colonel Ashutosh Sharma, second Bhartu Sena Medal, who made a supreme sacrifice last year in the Handwara operation. And in this interview, we'll try to understand his journey of joining in an army, life within an army from his brother, and various life lessons that he can share with all of us. So thank you, sir, for coming on this interview and accepting the invite. Welcome. Thank you so much. Thank you so much. It's an honor to talk to you, Akash. So if you could, tell us what motivated Ashutosh sir back then, to join the Indian Army. What were the circumstances back then? It was the family. In our family, we have so many in Army, Air Force, Coast Guards. So it was almost a family atmosphere. At the same time, we both of us wanted to join the army actually. Okay. So it was right from the childhood. We gave exams for the Sainik school. We were in NCC in our school days and college days. So it was right from the early stage, Ashu wanted to join army. Okay. So if you could, also tell us his life before joining the army. How was it? What he used to do? What he used to like as a child? Ashu, right from the beginning, was very strong in his decision making. And he was good in his study, reasonably good in his study. And he was very good in cricket and sports, team building games like this. So he was a versatile he had a versatile kind of personality overall, very helping in nature, but very choosy in making friends. Okay. So that was his style. And he will study less, but will score high. So that was his mental acumen. And he can learn anything, he can do anything. He had a lot of passion for everything. Whatever he will do to the fullest, to the perfectionist level. Otherwise, he will not do anything. Okay. Sir, if you can tell us, about his journey in the SSB, because all of us know he made it on his last attempt, that was his 13th attempt. What kept him motivated? And you were part of that journey as well. So if you could tell us what went into his mind, all of those failures that he faced before he got actually recommended. It was his firm determination. It was the only passion he had. He wanted to join the army. No other, not even the Air Force, nor the Navy, nor Coast Guard, nor any other paramilitary force. It was not the uniform he wanted the olive uniform, the uniform of army only. So he kept himself very focused. I told you earlier also that whatever he will do to the fullest, to the level of the perfectionist, otherwise he will not do. So he only wanted to join the army. And for that, he gave so many number of attempts. And every time he was getting rejected, he was becoming strong from within. He was becoming tough from within. He will come out of the SSB center, will stand in front of the SSB center and will give a salute to the center and say, one day I'll come. So that was his passion. And every time he was becoming stronger by each of his rejections. Got it. सर हम लोग जब एसएसबी जाते हैं वी हियर अ टर्म कॉल्ड ऑफिसर लाइक क्वालिटी तो आपने भी सुना होगा तो हाउ डिड यू सी हिम इवॉल्व from the day he got first rejected to actually becoming recommended? So did you see that growth happening? Did he do something very different which you felt if people do they might also get recommended? See, I always say in various my various of the interviews on YouTube or any of the live session or even on any of the multimedia platforms, I always say that the officers like quality is something which you can't get from any of the book or something. You have to imbibe yourself. You will have to grow these officer like qualities from within. आपको अंदर से इन चीजों को डेवलप करना पड़ेगा. आप कहीं से पढ़ के सीख के देख के नहीं कर सकते. और उसके लिए एक सिंपल मंत्र है कि स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन ऑफिसर. आप ये सोचना शुरू कर दो कि आप ऑफिसर हो. उससे क्या कहने का मेरा मतलब है कि आप हर एक्शन, आपका हर काम एक उस तरह से होना चाहिए जिससे आपको लगे कि आप एक ऑफिसर हो. एक ऑफिसर किस तरह से उस काम को करेगा. कोई भी टास्क दिया जाए, चाहे घर में कोई छोटा टास्क हो, घर में किसी तरह का कोई काम हो, कोई टीम बिल्डिंग का एक्सरसाइज हो, ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं भी कोई एक्टिविटी हो, आपकी एक्टिविटी इस तरह से होनी चाहिए.
आपका बिहेवियर उस तरह से होना चाहिए कि आपके कलीग्स, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर, आपके पेरेंट कहें कि ही इज डिफरेंट, एंड दैट डिफरेंट दैट यू कांट मेक इट आर्टिफिशियली। अगर आप कितना भी आर्टिफिशियल जाके एसएसबी में जाओगे, आपको जीटीओ पकड़ लेगा। आपको वो दे आर ट्रेंड लाइक दिस कि विद इन 5 to 10 मिनट्स वो आपको इतना कंफर्टेबल बना देंगे कि जो आपका एग्जैक्ट आपके अंदर है वो बाहर आने लगेगा। तो आपको अपने अंदर दिमाग में ये सोचना है कि मैं एक ऑफिसर हूँ, एंड दैट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द डे इज, जब आप बेड पे से सो के उठते हो तो अपना बेड सही करिए। दैट इज द फर्स्ट वे। तो आपको एक वहीं से आप ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाओगे, आपका दिन वहीं से ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगा। आपके पेरेंट्स विल फील गुड, यू विल नॉट गेट स्कोल्डेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि आपने बिस्तरा सही नहीं किया। सो वहां से ही आपका मेंटल मेकअप शुरू हो जाएगा। स्टार्ट विशिंग योर पेरेंट्स इन द मॉर्निंग, राइट। सो एंड जब आप शाम को थक कर आओगे तो आप यू विल फील वेरी गुड कि आपका बेड बिल्कुल रेडी है आप सोने के लिए, तो एक अलग सी फीलिंग आएगी। तो वो फिर एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। सो यही कर्नल आशुतोष में था। ही वॉज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। बचपन से ही, बहुत छोटेपन से ही वो ऑर्गेनाइज था। दे से द ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, सम हैव इनबॉर्न ऑफिसर लाइक क्वालिटी बाय बर्थ होती हैं, और कुछ आप एक्वायर कर सकते हैं। तो दोनों चीजों को मिला के एक ऑफिसर बनता है। तो आशु भी बहुत ऑर्गेनाइज था। उसके पास अगर 2 जोड़ी पैंट शर्ट्स हैं तो वो 2 जोड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे। वो उनकी बहुत केयर करेगा, उनको खुद धोएगा, प्रेस करेगा, एंड बहुत ही वेल ड्रेस्ड आपको दिखाई देगा। आप किसी भी उसकी बचपन की फोटो में देखें और टिल द लास्ट डे जो आप उसकी लास्ट फोटोग्राफ में देखें, उसकी यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड सच कि आपको देख के लगेगा कि हाँ, यस ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो आपको इस तरह से करना है। चीजें बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, कोई ऐसा आउट ऑफ द वे जाके आपको कुछ नहीं करना है, बट मेंटली आपको ऑफिसर बनना है। तो आशु की यही खासियत थी। मैंने बताया ही वॉज वेरी चूजी इन मेकिंग फ्रेंड्स, बिकॉज आपको अपने पेरेंट्स के बाद या इवन एक टाइम में सबसे ज्यादा आपको जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो आपका पीयर ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका सर्किल है। आप किनके साथ रह रहे हो, उनकी क्या आदत है, उनके क्या लाइफ गोल्स हैं, उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, अल्टीमेटली आप देखोगे सबसे ज्यादा आपको वो चीज इन्फ्लुएंस करती हैं किसी ना किसी तरह से। तो यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव इन मेकिंग योर फ्रेंड्स। इट डजंट मीन कि आप फ्रेंड्स मत बनाओ या आपके पास 1-2 फ्रेंड हो, बट आपके पास फ्रेंड वो हों जो क्वालिटी फ्रेंड हो, आपको भी आगे मोटिवेट कर सके। उनके थॉट प्रोसेस और आपका थॉट प्रोसेस मैच करना चाहिए, और आपके और उनकी आदतें मैच करनी चाहिए, तभी आप दोनों मिलके आगे बढ़ सकते हो। तो बी वेरी सेलेक्टिव इन मेकिंग फ्रेंड्स। मेक फ्रेंड्स दोज हु रियली मैटर, जिनका कोई लाइफ में कोई गोल है, एंड स्टे अवे फ्रॉम नेसेयर्स। आपको बहुत सारे लोग नेगेटिव मिलेंगे, अरे इसमें कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, नो नो नो। स्टे अवे फ्रॉम नेसेयर्स। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और अपने उसमें फोकस रखिए। एक और ऑफिसर लाइक क्वालिटी के लिए बहुत चीज जरूरी चीज है, वो टीम बिल्डिंग की। आप जहां भी है तो आप गेम्स भी उस तरह से चूज करें जिसमें टीम बिल्डिंग की चीजें हों। आप आज की तारीख में जब आप वर्चुअल मीडिया पे ज्यादा आपका वो है, क्योंकि आप कोविड प्रोटोकॉल की वजह से ज्यादा भीड़ में या नहीं जा सकते हो, तो ऐसी तरह की एक्टिविटीज आप वर्चुअली कर सकते हो। जो आपके एस्पिरेंट्स हैं वो कोई भी करंट टॉपिक का एक सेशन प्लान कर सकते हैं जूम पे, स्काइप पे या किसी तरह से। तो आप लोगों को बांट दो कि भाई तुम ये पार्ट कवर करना, मैं ये पार्ट कवर करूंगा, मैं ये करूंगा, आई विल समराइज। तो आप टीम बिल्डिंग वहां से भी कर रहे हो। सो अपने आप काम करना इज गुड, बट लोगों से हम काम करवाना इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट। या सो दीज आर फ्यू ऑफ द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। एंड इसके अलावा फिजिकल करेज, मेंटल करेज। फिजिकल करेज मीन्स आप यू हैव टू बी फिजिकली फिट। आपको कम से कम 5 किलोमीटर डेली दौड़ना चाहिए और मिनिमम 100 पुशअप्स पर डे। क्योंकि आप सेलेक्ट हो गए तो आपको सजा मिलेगी तो भी आपको वो यही करवाएंगे, दौड़वाएंगे और पुशअप्स लगवाएंगे, और आप को कुछ अच्छा करके आओगे तो भी वो पुशअप्स और दौड़ाएंगे।
तो अगर आप मेंटली फिट हो और फिजिकली फिट हो तो फिजिकल करेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द एस्पिरेंट्स एंड एट द सेम टाइम मेंटल करेज। मेंटल करेज मीन्स अगर कुछ चीज गलत हो रही है तो आपको गलत कहना आना चाहिए, आप गलत हो रही है तो आप उसको बताइए, आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट एट द सेम टाइम कम विद एटलीस्ट 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस व्हाट यू हैव। In this world nobody wants to listen no or nobody wants to listen कि नहीं आप ये सर ऐसे गलत है। ये एक पार्ट है, बट आपकी कैपेबिलिटी ये है कि कम से कम आपके पास 3 पॉसिबल सॉल्यूशन भी होने चाहिए उसके कि सर आई हैव स्लाइट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसको अगर हम इस तरह से करें, इस तरह से करें या इस तरह से करें तो नहीं। So that is what is office life qualities. Got it, sir. Sir, if you could also tell us, how was his life in the academy? He would have gone to offset in academy. तो उनकी वहां पे लाइफ कैसी हुआ करती थी? कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया होगा? मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताऊं, क्योंकि वो आपके बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होंगे वो एसएसबी में जा रहे होंगे, रिजेक्ट हो रहे होंगे और किस तरह से हो रहे होंगे, तो मैं उसमें थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा। ओके सर। एक तो मैंने बताया कि आप जब भी वो वहां से आता था तो और मेंटली टफ होता था रादर देन टूटता था। और एसएसबी में आपने भी देखा होगा एक बहुत कल्चर होता है, हालांकि वो एक लाइट रखने का कल्चर होता है, एक अच्छा वो होता है कि आप एक बार रिजेक्ट होते तो आप लेफ्टिनेंट बन जाते हो, दूसरी बार होते हो तो आपको कैप्टन कहते हैं, तीसरी बार वो मेजर कहते हैं। तो सो ऑन सो फोर लोग एक ग्रुप सा बन जाता है जो हर बार मिलते हैं और वो कहते हैं साहब ये कैप्टन साहब है, ये मेजर साहब है। इसका मतलब पता लग जाता है कि 3rd टाइम रिपीटर है या 4th टाइम रिपीटर है। उसमें भी आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक जो सिर्फ कहीं मुझे नौकरी करनी थी इसलिए मैं आ गया हूँ, तो वो 4 बार भी आ जाते हैं, 5 बार भी आ जाते हैं। कोई एसएसबी में कोई ज्यादा वो होता नहीं है, आपको कोई बहुत पे नहीं करना पड़ता है कि, तो लोग आते हैं। बट उसमें आपको एक लॉट मिलेगा जो एक्चुअल सीरियस लॉट है, जो कर्नल आशुतोष शर्मा टाइप का लॉट है। आप उनके साथ रहो, उनको ग्रुप में लो, क्योंकि जब वो वापस भी आते हैं तो फिर बदमाशी करते हुए आते हैं नहीं। आप उस ग्रुप में रहोगे तो वो आपको शॉर्ट कमिंग्स या वो अपनी चीज बताएंगे कि मैंने ऐसे किया तो मुझे लगता है शायद ऐसे करना चाहिए था। सो स्टे विद देम, डोंट स्टे विद समबडी की अच्छा वो तो मैंने ये भी फॉर्म भरा हुआ है, मैंने बैंक का भी भरा हुआ है या वट एवर इट इज। तो प्रायोरिटी डिफरेंट हो सकती है, कई लोगों के पेरेंट्स ज्यादा उनको बोलते नहीं तो मैं आर्मी में जाना है। सो देयर कैन बी सो मेनी ग्रुप्स, बट यू स्टे विद द कोर ग्रुप, जो ग्रुप एक्चुअल सीरियस है उसके बारे में। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। जरूरी नहीं है कि आप खुद गलती करो और उससे सीखो, दूसरों की गलतियों से भी आप सीख सकते हो। ये कर्नल आशुतोष बहुत फ्रीक्वेंटली कहते थे। सो उसमें रहिए, रिजेक्ट होने के बाद अपने आप को और मेंटली स्ट्रांग बनाइए। अगर आप नेगेटिविटी में जाओगे तो अगली बार और रिजेक्शन के चांस आपके बढ़ जाएंगे। तो स्टे फोकस, स्टे काम, learn from your mistakes and at the same time learn from the others mistakes also. So stay motivated, stay charged, that is the one thing. आपके अंदर कमिटमेंट दिखना चाहिए जीटीए को, आपके अंदर कमिटमेंट दिखना चाहिए इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कि हाँ इसके अंदर कमिटमेंट है। जब कर्नल आशुतोष लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट देने गए थे एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने उनकी पूरी फाइल फर्स्ट से लेके 12th अटेम्प्ट तक की रखी हुई थी, उन्होंने उस फाइल को देखा एंड देन ही आस्क्ड, जो कुछ बाकी क्वेश्चंस पूछे होंगे वो तो पूछे ही होंगे जो जिस तरह से उनको है, बट द फाइनल क्वेश्चन वाज कि आशु ऐसा क्या है जो तुम इतनी बार इंटरव्यू देने आए हो और इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद। सो दैट ऑफिसर वाज अ पैरा ऑफिसर, ही सेड सर ये जो मरून बैरे है ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। सो दैट वाज द कमिटमेंट। एंड इसी में एक चीज और आपको बताऊंगा कमिटमेंट किस तरह का होता है। 99 में जब करगिल वॉर हो रही थी, उस टाइम कर्नल आशुतोष करीब 10 से 11 बार रिजेक्ट हो चुके थे। और वो हमारे घर में एक मंदिर था, एक काफी बड़ा मंदिर, हमारे घर में एक रूम था डेडिकेटेड मंदिर, तो उसके बाहर उनकी स्लीपर्स उतरी हुई देखती थी मेरी वाइफ, तो वो समझ जाती थी कि भैया मंदिर के अंदर है। आधा घंटा 1 घंटा वो उस मंदिर के अंदर बैठ के रो रहा होता था। और वो रो इसलिए नहीं रहा होता था कि वो रिजेक्ट हो गया है, वो रो इसलिए रहा होता था कि मुझे आज करगिल में होना था,
और आज मैं यहाँ हूँ। हम्म, आप सोच सकते हैं कि 10-11 बार कोई रिजेक्ट हो गया, 10 बार भी रिजेक्ट होने का मतलब है 5 साल। हम्म, 5 साल किसी ने एक चीज की तैयारी करी और वो रिजेक्ट हो गया, और अभी भी वो रो ये रहा है कि मुझे आज करगिल में होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट कमिटमेंट इज ऑल अबाउट। got it, So this makes Ashu the legendary Colonel Ashutosh double bar to Sena. got it, sir. And believe me, जो भी आपके ये एस्पेरेंट्स देख रहे हैं, सबके अंदर वो कर्नल आशुतोष है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम हमेशा एंड प्रोडक्ट को देखते हैं कि वो एंड प्रोडक्ट कितना बड़ा है, हम्म, और हम ये सोचते हैं कि शायद हम उस तरह से नहीं बन पाएंगे। हम्म, कर्नल आशुतोष was just like all of you those who are watching this. कोई स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं था, आप स्पेशल एट्रीब्यूट अपने आप बनाते हो, अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ आप बनाते हो। हम्म, सो ऑल ऑफ दोज हु आर वाचिंग, बिलीव मी, मार्क माय वर्ड, आप सबके अंदर वो पोटेंशियल है जो कर्नल आशुतोष के अंदर। ही वाज अ सिंपल पर्सन, माँ बाप की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने वाला, गॉड फियरिंग बंदा था, एंड वेरी टफ फ्रॉम विद इन। टफ फ्रॉम विद इन का मतलब उसको सुबह 4 बजे उठ के वॉक रनिंग पे जाना है तो जाना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। उसको पढ़ाई रात भर करनी है तो करनी है। तो यू हैव टू बी टफ, and you can be tough to your everybody because it is all about leading by example. तो आप वो तभी हो सकते हो जब आप करके अंदर से रखते हो, तभी आप 100 लोगों से करवा सकते हो, हम्म, तभी जब गोली चलती है तो आप किसी से फायर का ऑर्डर दे सकते हो, जब उनको पता है कि जो हमारा ऑफिसर जो हमें लीड कर रहा है, ही इज बेटर देन अस। हम्म, सो दिस इज व्हाट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आर। तो जो इंटरव्यू में है, आप हर बार कभी भी रिजेक्शन से फेल मत होइए। और एक चीज मैं और यहाँ बताना चाहूंगा कि जब वो लास्ट अटेम्प्ट के आसपास, मतलब 11-12 अटेम्प्ट तक पहुंच गया था, तो मैं उससे यही पूछता था कि आशु, मान ले इतना तेरा बार रिजेक्ट हो गया, लगता यही है ना कि वहाँ ठीक है यार, अब इतनी बार रिजेक्ट हो गया तो देयर इज समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग इन फ्रॉम इनसाइड, या नहीं होगा। एंड दैट टू सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि बहुत ही रोबस्ट है एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट इन दी वर्ल्ड मैं कहूँगा। तो लगता है कि नहीं, कुछ अंदर ऐसा है जो शायद हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मैं उससे ये पूछता था, मैं आशु, अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्या करोगे? तो ही हैड वन सिंपल आंसर टू इट। धीरे से स्माइल करते हुए उसने बोला, भैया, आर्मी की रैली में चला जाऊंगा, वहां से जवान भर्ती होऊंगा और इंटरनली प्रमोट होकर ऑफिसर। दैट इज कमिटमेंट, दैट इज कमिटमेंट। जाना मुझे आर्मी में ही है, बनना मुझे ऑफिसर है, जवान बन के चला जाऊंगा। बिलीव मी, अ पर्सन कमिंग फ्रॉम अ गुड मीडियम क्लास फैमिली, अगर वो जवान बनता तो किस तरह का उसका वो होता, बट ही वॉज प्रिपेयर्ड। आप सोच सकते हो कि जो 6.5 साल बाद सेलेक्ट हुआ, 13 अटेम्प्ट का मतलब 6.5 ईयर्स, 6.5 साल में उसको फैमिली की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से इंटरनल प्रेशर होता है। जो ग्रेजुएशन करने के बाद उसके साथ के लोग होंगे, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कहीं बैंक में पहुंच जाता है, शादियां हो जाती हैं, लोगों की बच्चे हो जाते हैं। उस प्रेशर में रह के और आपको परफॉर्म करना, that's true. राइट? सो दिस इज व्हाट अबाउट हिज इंटरव्यू एंड एकेडमी। एकेडमी दे से कि चेन्नई में 3 ही वेदर होते हैं, हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट, राइट? सो बहुत टफ ट्रेनिंग है। हालांकि ड्यूरेशन कम है एज कंपेयर टू आईएमए, बट बहुत टफ ट्रेनिंग है। टफ इन द सेंस कि वेदर बहुत हार्श है। सो बट आप जब इतनी टफ उसके बाद जाते हो ना, तो आप हर चीज को एंजॉय करते हो। अभी इसी साल फर्स्ट सितंबर को कर्नल आशुतोष शर्मा का जो बैच है SS-72, उनका 20 साल कंप्लीट हुए थे। फर्स्ट सितंबर 2001 ही पास्ड आउट। तो उनके बैच ने एक गेट टुगेदर किया था, एंड आई वाज आल्सो कनेक्टेड विद देम थ्रू वर्चुअली। तो वो ये कहते थे कि हमने आशु को कभी परेशान ही नहीं देखा।
आपको 2 घंटे सोने को मिल रहा है, 4 घंटे सोने को मिल रहा है, सोने को भी नहीं मिल रहा है, इतनी गर्मी है, इतना टफ कंडीशन है, वो हँसता रहता था। वो खुद नॉनवेज नहीं खाता था, तो आप खुद अपना नॉनवेज वाली लाइन में लग के जो एग्स मिलते थे वो ले आता था, अपने फ्रेंड्स को देता था। तो दैट वाज द काइंड ऑफ स्टाइल कर्नल आशुतोष। कुछ भी काम है, कुछ भी है। एंड वन फ्रेंड वाज सेइंग कि जो भी जिसमें भी बेस्ट है वो कौन है, वो आशु है। ही रिप्रेजेंटेड हॉकी टीम, तो रनिंग में एवरीवेयर। तो मतलब ही वाज, जब आप चीज को एंजॉय करके करते हो ना, तो फिर आपको कोई कहने की चीज नहीं रह जाती। ही नेवर एवर कंप्लेंट इवन अ सिंगल डे। 20 साल वो जॉब में था, उसने एक सिंगल डे कंप्लेंट नहीं करी कि नहीं ये बेकार है, ये बहुत टफ है, ऐसे है, मैं छोड़ दूंगा। नेवर। इतना एंजॉय करता था पूरे प्रोसेस को, तो चाहे वो ट्रेनिंग भी हो, ही एंजॉयड थॉरली। यस। सर फिर उन्होंने जो द गार्ड्स ज्वाइन किया, तो वो डिसीजन उन्होंने कैसे लिया? क्या मोटिवेशन था उस टाइम उनका फ्रॉम द एकेडमी टू जॉइन द गार्ड्स एंड देन टू द आरआर? देखो क्या होता है कि जब आप अच्छे ब्रैकेट में होते हो, अच्छी ट्रेनिंग कर रहे होते हो, तो जो आपके उस्ताद होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो आपके ट्रेनर्स होते हैं, जो एडजुटेंट होते हैं, वो सब वो एक आपके पे नजर रखते हैं। एंड जैसे जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होने लगती है, तो दे ऑल स्टार्ट मोटिवेटिंग यू कि आशु ये ज्वाइन करो, तुम ये ज्वाइन करो, इसमें ऐसे करो, ये वाला ज्वाइन करो, क्योंकि एवरीबडी वांट्स गुड कैडेट्स टू कम इनटू देयर यूनिट, राइट? सो देयर वाज अ लॉट ऑफ पुल अमंग्स ऑल द इंस्ट्रक्टर्स कि आशु ये ज्वाइन कर, आशु ये ज्वाइन कर, ये देख ऐसे है। सो इट वाज आशु's choice and he gave only one choice, that is infantry. His all the choices were infantry, and जो mechanized infantry है, brigade of the guards है, उसमें जो meritorious student होते हैं, जो पढ़ने में भी होशियार होते हैं, बिकॉज जो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स यूनिट है उसमें काफी साइंस और उसके बैकग्राउंड के लोग आते हैं। इवन जो जवान है वहाँ पे, उसमें जवान भी बहुत हाईली क्वालिफाइड एमएससी और सेलेक्ट लेवल के लोग आते हैं। ओके। सो रेकी एंड सपोर्ट यूनिट है, तो इनका कोऑर्डिनेशन और जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर टोटली साइंस बेस्ड। सो इट इज one, I would say, one step ahead of infantry in terms of their technical acumen. So Ashu was given that. गॉट इट सर। सो फिर वहां से उन्होंने फिर डेपुटेशन में गए थे आरआर में, एंड दैट टू द 21 आरआर, इनको ट्रिपल सेंचुरियन भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री दैट दे हैव एंड द रेपुटेशन। तो वो उन्होंने डिसीजन कैसे लिया और फिर वो दूसरी बार वापस गए वहां पे एज अ सीईओ? वो कैसे जर्नी थी? Academy के बाद he joined 19 guards. 4th September 2001 he joined 19 guards, which is one of the unit of the brigade of the guards. Again a finest unit, one of the finest unit. And वहां पे जाने के बाद जस्ट आफ्टर सम टाइम ही पार्लियामेंट पे अटैक हुआ और ऑफ पराक्रम जो है वो लॉन्च हो गया था। सो ही वाज अ पार्ट ऑफ पराक्रम। देन ही वेंट टू यूएन पीस कीपिंग फोर्स। इन द मीन टाइम आपके जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, पार्ट डी, पार्ट सी और वाईओस, सारा कुछ। सो ही डिड वेरी वेल इन ऑल ऑफ दीज कोर्सेज, इवन इन कमांडो कोर्स बेलगाम में जो होता है। सो ही डिड वेरी गुड इन ऑल दीज कोर्सेज। तो मैंने बोला ना, जब आप एंजॉय करते हो तो फिर आपको किसी तरह का कोई पुश नहीं चाहिए होता है। कोई आपको बताने, फिर आपकी जरूरत नहीं होती किसी को कहने की कि आपको क्या करना है। एंड यू शुड ऑल्सो अप्रिशिएट वन थिंग कि कमिंग फ्रॉम ओटीए, नॉर्मली लोगों के माइंड में ये रहता है कि आप शॉर्ट सर्विस में हो, आप 5 साल 7 साल बाद जॉब छोड़ दोगे, या आपका परमानेंट कमीशन होगा कि नहीं होगा। बट आशु ने कभी इन चीजों को नहीं सोचा, एंड उसने एक ये बहुत बड़ी मिथ को तोड़ा कि एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का या शॉर्ट सर्विस ऑफिसर इस लेवल तक जा सकता है। ये उसने बहुत बड़ी मिथ को तोड़ा। तो आपके जो एस्पिरेंट्स हैं, दे शुड नॉट फील कि ओटीए में जाने के बाद दे डोंट हैव एनी कैरियर। आपका काम आपको कहीं से कहीं ले जाता। कभी भी आशु को ये सोचना ही नहीं पड़ा कि मैं, ऐसा तो नहीं है मैं परमानेंट कमीशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एंड उस लेवल तक पहुंचना, जो उसके सीनियर से मेरी बात होती है, एंड इवन उस टाइम भी आशु भी बताता था और जो मेरे भी जान में है, तो वो लोग यही बताते थे कि लुकिंग टू दी हिज करियर प्रोफाइल, एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग मिनिमम मेजर जनरल, मिनिमम मेजर जनरल।
राइट। सो ये इस मिथ को दूर कर देना चाहिए हमें कि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर की कैरियर बहुत ज्यादा नहीं है, या अगर कैरियर है तो वो ऐसी जगह नहीं जा सकता। सो ही क्लियर्ड ऑल। इवन आपने देखा होगा कमांडो जो कॉन्फिडेंस जंप होता है, जो आपने प्रहार Correct. मूवी में भी देखा होगा, जो बहुत। Hmm. सो ही वाज द फर्स्ट वन, ही वॉलंटियर्ड। जब सब लोग बताया गया कि कैसे करना है तो द इंस्ट्रक्टर आज की कौन वॉलंटियर करेगा, तो हर जना ऑब्वियसली इस हाइट को देख के और सोचता है कि ठीक है, नोबडी वांट्स टू वॉलंटियर, बट ही वॉलंटियर, Hmm. राइट। तो दैट वाज हिज करेज, दैट वाज हिज पैशन। तो वो इसी पैशन के साथ चलता गया। जो भी कोर्सेज आए, जो भी वो आए, सब में वन ऑफ द फाइनेस्ट कैडेट के रूप में वो आगे चलता गया। एंड एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस कॉलेज कोर्स होता है स्टाफ कॉलेज का। Hmm. और स्टाफ कॉलेज अगेन इज अ वेरी वेरी रेयर काइंड ऑफ दिस थिंग, कि जो बहुत रेयर ही ऑफिसर्स उसको क्लियर कर पाते हैं। और उसका सिंपल रीजन ये है कि वो जो स्टाफ कॉलेज है, लिमिटेड सीट्स हैं, Hmm. और दैट इज ओपन फॉर ऑल। ऑल मीन्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इवन कोस्ट गार्ड्स, Okay. प्लस फॉरेन स्टूडेंट्स। Hmm. मतलब हमारे कई कंट्रीज के हैं, तो उस अब्रॉड के भी स्टूडेंट्स आर्मी एयरफोर्स के, दे ऑल्सो कम टू डू दी स्टाफ कॉलेज। Hmm. तब आप समझ सकते हो कि क्या ग्रेविटी है, क्या उस कोर्स का वो है। सो वेरी वेरी टफ, एंड मेजॉरिटी ऑफ लॉट दे आर नॉट एबल टू डू दिस। उसके लिए आशु ने 6 महीने की स्टडी लीव ली। Hmm. ही स्टेड अवे फ्रॉम हिज फैमिली, एंड 6 महीने में 18 घंटे सिर्फ वो पढ़ाई करता। Okay. 6 घंटे में सोना, नहाना, धोना, खाना पीना, एवरीथिंग। Nice. और जिस बंदे ने 13वें अटेम्प्ट में इंटरव्यू क्लियर किया, रिटन क्लियर, सॉरी एसएसबी क्लियर किया हो, उसने पहली बार में स्टाफ कॉलेज की। That's nice. तो हम एसएसबी स्टाफ सॉरी एसएस ऑफिसर्स को हम सोचते हैं शॉर्ट सर्विस को कि वो पता नहीं कहाँ तक जा पाएगा, Hmm. एंड सी ही क्लियर्ड इन 1। तो उसने जो वो 6.5 साल का गैप था, और एक जो ओटीए का या शॉर्ट सर्विस का एक मेंटल बैरियर था, उसने अपनी मेहनत से सारी चीजों को कम किया। Hmm. एंड देन ही वॉलंटियर्ड फॉर आरआर। Okay. ही वाज नॉट गिवन पोस्टिंग फॉर आरआर। उसके कोर्स की वजह से, उसके क्वालिफिकेशंस की वजह से, परहैप्स आर्मी वांटेड हिम टू बी इन अदर प्लेसेस। आर्मी चाहती थी कि वो और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हो, बट ही वॉलंटियर्ड फॉर ऐसा आरआर। वॉलंटियर करके गया एज ए एडजुटेंट, फिर एज ए 2IC वहीं पे था ऑलमोस्ट 2.5 साल के करियर में। बहुत काम किया उसने वहाँ पे, कश्मीरी लोगों के लिए बहुत काम किया, यूनिट के लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत नाम किया। ऑलरेडी बहुत ही रेपुटेड यूनिट है, 63 राष्ट्रीय राइफल यूनिट्स हैं, उसमें से अकेली राष्ट्रीय राइफल यूनिट है जो कि ट्रिपल सेंचुरियन कहलाती है। एंड वो ट्रिपल सेंचुरियन इसलिए कहलाती है क्योंकि उन्होंने सिंस देयर इंसेप्शन, जब से वो फॉर्म हुई है यूनिट, और तब से अब तक 300 प्लस आतंकवादी, 300 प्लस मिलिटेंट्स they have killed, the only RR unit। Hmm. तो उस RR यूनिट में पोस्ट होना, दो दिस इज ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की ही यूनिट है, गार्ड्स यूनिट है वो, बट उसमें पोस्ट होना और उसमें एज ए सीओ जाना इज अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस। आपको उस लेवल पे रहना है, एंड यू शुड फील गुड अबाउट इट कि जिस यूनिट को ट्रिपल सेंचुरियन कहते हैं, उस यूनिट का एक सीओ भी है जो 3 सेना मेडल्स, ट्रिपल सेना मेडल, Yeah. double barred Sena medal, a very, very rare kind of distinction now the unit has. True, sir. So he opted, and बहुत सारे ऑपरेशंस किए, बहुत सारे कश्मीरी लोगों के लिए काम किया, यूनिट के लिए काम किया, सेना मेडल मिले, इसके अलावा कई और मेडल्स मिले, चीफ ऑफ आर्मी कमेंडेशन कार्ड मिला। सो ही डिड वेरी वेल। सो बिफोर कमिंग आउट फ्रॉम यूनिट, अपना वो टेन्योर खत्म करने के बाद, ही वाज टोल्ड कि आपको दोबारा से इसी यूनिट को कमांड करना, एंड देन ही बिकेम द कमांडिंग ऑफिसर। Got it, sir. सर हमने आशुतोष सर की काफी सारी ब्रेवरी की स्टोरी सुनी है। उनके सेना मेडल के कुछ साइटेशन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, तो उन सेना मेडल को मिलने के लिए जो साइटेशन थी, कुछ स्निपेट्स हैं इंटरनेट पे। सो
what makes him so brave? और अगर एक नॉर्मल इंसान उस लेवल पे ब्रेव बनना चाहता है कर्नल आशुतोष सर की तरह, वो क्या कर सकता है आपके हिसाब से? इट इज ऑल अबाउट पैशन, एज सिंपल एज दैट। मैं आपको कोई जार्गन्स नहीं बोलूंगा, कुछ ऐसा चीज नहीं बोलूंगा। इट इज ऑल अबाउट पैशन, हाउ यू लव योर यूनिफॉर्म, हाउ यू लव योर वर्क, एंड हाउ यू लव योर सीनियर्स एंड जूनियर्स। दैट इज द टीम बिल्डिंग, चाहे वो अप इन दी हायरार्की, चाहे डाउन इन दी हायरार्की। आप अपने अंडर के ऑफिसर्स को, कंपनी कमांडर्स को किस तरह से प्यार देते हो, किस तरह से उनको सिखाते हो, एंड सेम वे आप अपने जवानों को किस तरह से ट्रीट करते हो। दैट इज द ओनली मंत्रा, दैट इज द ओनली मंत्रा। आप उनको कितना प्यार करते हो और किस तरह से रखते हो, जब टाइम आने पे वो आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। हर आदमी को एक आदमी की तरह प्यार करने की वो होती है, चाहत होती है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सर इवन कश्मीर में उन्हें काफी सारे लोग पसंद करते थे, इवन काफी सारे लोगों ने उनके पास स्टोरी फोटोज डाली थी, तो वो जो गुडविल है वो उन्होंने कैसे कल्टीवेट किया? यूनिट में समझ में आता है, बट इवन द एनवायरनमेंट वेयर ही ऑपरेटेड द लोकेलिटी, तो वहां पे उन्होंने ये कैसे किया? देखिए क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला ना, जैसे आपको एसएसपी का भी एग्जांपल दिया या फ्रेंड्स का भी, देयर आर नेचर्स, नकारात्मक लोग कुछ एक परसेंटेज मिलेंगे हर जगह। आप कहीं चले जाइए, किसी प्रोफेशन में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, फैमिली में देख लीजिए, सोसाइटी में देख लीजिए, हर जगह आपको मिलेंगे। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपको बहुत सारे अच्छे लोग भी मिलेंगे। एंड देखिए, आप सक्सेसफुल तभी हो एज ए लीडर जब आपके साथ के लोग आपके साथ हैं। आप अच्छा ऑपरेशन तभी कर सकते हो जब वहां के लोग आपके साथ, ठीक है ना। और उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको भी एक अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। दैट इज इट। तो आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो। बिलीव मी, जिस दिन कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हुए, पूरा हंडवारा रोया था। पूरा हंडवारा रोया था, लोग रोए थे। हम कहते हैं कि कश्मीर लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2%, 5%, 10% लोग हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम, उन लोगों को सबको इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, उनको अपने बच्चे पालने हैं, उनको अपना बिजनेस चलाना है, वो माहौल चाहिए। अगर आप उस तरह से लोगों को ट्रीट करते हो, हर जना आपसे प्यार करता है। थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ा सा इनिशियली इम्पॉसिबल लग सकता है, बट दैट इज व्हाट योर लीडरशिप क्वालिटी इज ऑल अबाउट। Got it, sir. Sir, if you could, also tell us about the last operation that he was into. उस टाइम पे क्या चल रहा था आपके फैमिली में जब वो ऑपरेशन हो रहा था, एंड एज अ शहीद फैमिली व्हाट गोज इनटू इट? क्योंकि हमने वीडियोस देखी हैं न्यूज़ में जो आ रहा था, इवन आपने कुछ इंटरव्यूज में बताया कि कैसे मिसेज आशुतोष जो है, उन्होंने सबसे पहला कॉल एक्चुअली वाइफ ऑफ मेजर अनूप सूद को किया था। सो व्हाट हैपेंस ऑल ऑफ दोस जब एक शहीद होता है कोई इंसान आपकी फैमिली में, तो क्या व्हाट हैपेंस देन? देखिए, इट इज ऑल अबाउट प्राइड एंड पेन, राइट। एंड मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक सैनिक को, चाहे वो जवान हो, चाहे वो ऑफिसर हो, उसको ट्रेनिंग दी जाती है मेंटली टफ होने की, फिजिकली टफ होने की। पर फैमिली को, वाइफ को, बच्चों को, माँ को, भाई को, बहन को कोई ट्रेनिंग नहीं देता। कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि अब आप ब्रदर हैं तो अब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, वी विल मेक यू मेंटली टफ और फिजिकली टफ। नो, आप फैमिली में उस चीज को, अपने भाई को, हस्बैंड को, फादर को देख के अंदर से स्ट्रांग बन रहे होते हो, उस मोमेंट को जी रहे होते हो, और आप भी उसमें प्राइड ले रहे हो। So that is how the entire family starts becoming strong from within. आपने देखा होगा, चाहे कर्नल आशुतोष की डॉटर को भी, और कितने बच्चे हैं अपने फादर को सैल्यूट देते हैं। इतनी माँ हैं जो अपने फादर को, बच्चे को सैल्यूट देती हैं। इट इज नॉट एट ऑल इजी, इट इज नॉट एट ऑल इजी। टीवी में देखना, मूवी में देखना इज वेरी वेरी इजी, बिकॉज वहाँ एक्शन है, आपका एक्टर, आप एक्टिंग है वहां पे आपकी।
But when it comes to the real life, it is, believe me, it is very, very difficult. But अगर आपको पता है कि आपका जो भाई था या फादर था या हस्बैंड था या पिता था कितना स्ट्रांग था और उस किस पैशन से वो रहता था, then it becomes a matter of pride and of course pain. I will not say, I will not be superficial कि pain नहीं होता है. Losing a childhood friend, Colonel Ashutosh was just 1.5 years younger to me. He was more than a brother to me. He was more like a friend. बहुत पेन होता है. कभी occasions होते हैं, दिवाली थी कभी 2 दिन पहले, so it becomes very, very tough. But at the same time, when you know that somebody has done एक इतने बड़े cause के लिए उसने काम किया है, so you also take pride in that. So same we demonstrated, same we did, और हमने ऐसा वो किया जिससे कि इस देश में वीरों की कमी न रह जाए. इस देश की माँ, इस देश का भाई, इस देश का पिता ऐसा ना हो कि ये सोचे कि मैं अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को या अपने फादर को आर्मी में जाने दूं कि नहीं, या वो ये कहे कि आप देखना ऐसा ना हो. नहीं, मैं हमेशा उससे ये कहता था. एंड इवन मैं तो क्या, पल्लवी, मुझे आज भी ध्यान है कि जब मैं कर्नल आशुतोष को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था और पल्लवी भी हमारे साथ थी पहली पोस्टिंग में, तो पल्लवी ने कहा आशु से, आशु चुन चुन कर एक को मारना. So that is the kind of backup support family needs to give. मैं आशु से यही कहता था, भैया कभी भी रिस्क लेने से मत डरना, हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना. He was a gallant officer, brilliant officer. He was a combat officer, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. आज भी मैं एक बहुत सीनियर उसके जनरल साहब से बात कर रहा था, वो भी रिटायर हुए हैं. So he said he was a gallant officer. So आप गैलेंट हो तो गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में. हो सकता है ऐसा भी हो, बट यू नीड टू गिव द मेंबर, द ऑफिसर सॉलिड बैकअप फ्रॉम बैक साइड. उसको मेंटली अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, स्टेबल रखना है, और उसको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मेरे घर पे क्या हो रहा है. दैट इज व्हाट वी यूज टू डू. My last question to you basically is, a lot of aspirants are watching it. So what is the message that you want to give to all those aspirants who are watching this? They always say that proof of the pudding is in eating, right? So मेरा छोटा बेटा भी एनडीए की तैयारी कर रहा है और वो भी आर्मी में जाएगा. Have confidence in yourself. That is what I will like to say to each one of the aspirants. अपने पे कॉन्फिडेंस रखो. दुनिया क्या कह रही है इस पे बिल्कुल भी ध्यान करने की जरूरत नहीं. कहीं से आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिल रहा है, सीख लीजिए, बट स्टे फोकस्ड, स्टे काम, हैव फेथ इन कॉन्फिडेंस, गिव फुल रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स. दे आर द ओनली लिविंग गॉड वी सी इन अवर लाइफ. वो हमारे जीते जागते भगवान है. गलत आदत से, गलत बिहेवियर से दूर रहिए. Be very selective in making decision and doing whatever. Even आप अपने कपड़ों को पहनने में भी बहुत सेलेक्टिव होनी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटी बन रही है वहां पे भी और बिगड़ रही है. जनरल नॉलेज पे पूरा फोकस रखिए. करंट अफेयर्स बहुत जरूरी हैं. इंग्लिश नहीं आती, घबराने की जरूरत नहीं. ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा. प्लीज कीप दिस अवे फ्रॉम योर माइंड. ये भी ऐसा नहीं है कि जो आर्मी ऑफिसर का बच्चा है या आर्मी ऑफिसर का वो है उसका सिलेक्शन की चांसेस ज्यादा हैं और आपकी कम है. ये भी बिल्कुल नहीं है. इस मिथ को भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हम बायस्ड हो जाते हैं. या होता क्या है कि हमारे ग्रुप में एक भी अगर फौजी का बेटा है तो वो आके आपको सुनाता है कि अरे मैं तो इसको भी जानता हूँ, ये मेरे पापा का जूनियर है, ये सीनियर है. नथिंग वर्क्स. सिस्टम इतना फूल प्रूफ है कि वो कुछ इस तरह की चीजों को होने ही नहीं देगा. आपने धोनी की मूवी देखी होगी, MS धोनी जो मूवी थी, और उसमें जो मैच था और एक शाम पहले जब वो धोनी की अपने टीम के साथ जा रहा था और युवराज
स्ट्रॉली लेके पिंक कलर की वो पहन के, मैं मूवी बहुत कम देखता हूँ, बट जो देखता हूँ उसमें से कुछ टेक होम जरूर रखता हूँ। ना देखी हो तो जरूर देखिएगा आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं। तो धोनी स्ट्रॉली लेके आ रहा होता है कान में हेडफोन लगा के बहुत स्टाइल से, और धोनी के अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ जा रहा होता है। और अगले दिन मैच होता है और धोनी मैच हार जाता है युवराज की टीम से। तो उसके फ्रेंड्स आते हैं घर पे, धोनी सो रहा होता है, खटखटाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। तो धोनी का एक ही वर्ड था, मैच तो हम एक रात पहले ही हार गए। उन्हें क्या हुआ, देन ही टेल्स। तो वो क्या होता है, मेंटल गेम है वो। आप उसके उसमें हो जाते हैं, यार इसका तो सिलेक्शन 100% होगा, इससे तो आर्मी ऑफिसर का बेटा है, इसको तो सब पता है। नथिंग। आप अपने अंदर विश्वास रखिए, अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत सिस्टमेटिक बना के रखिए, गलत आदतों से दूर रहिए, और ज्यादा कुछ नहीं है। हम सब बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप जैसे तरह से। बस एक डिटर्मिनेशन चेंज कर देता है, आपके साइन को आपका ऑटोग्राफ बना देता है। थैंक यू सो मच। Got it, sir. So thanks a lot, sir, for your time on this session and telling us his life story of how he joined the armed forces and various life lessons that he has left with all of us, which we can still cherish. Thanks a lot again, sir, for your time on this session. Jai Hind, sir. Thank you so much. Thank you so much, Akash. It was pleasure talking to you. And please keep the good work on. You are doing a great job by telling the people and by helping the aspirants to wear the uniform. My best wishes are with you. Thank you so much. Thank you, Jai sir. Hind. Bye bye, sir. Jai Hind.